Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start our science new chapter, that is chapter number 3, bones and muscles. चैप्टर नंबर 3, बोन्स एंड मसल्स। तो इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। नाउ गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा द बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ऐसी बोन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है हम उसको बोलते हैं स्कल। द बोन दैट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, तो वो होता है हमारा रिब केज। The tissue that joins bones and muscles, so they are tendons. And the substance found inside the bone is bone marrow. Fine. The bones and muscles of human body are what brick and cement are for a building. तो हमारी बॉडी में बोन्स एंड मसल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी एक बिल्डिंग में ब्रिक्स और सीमेंट। They help in our structural organization and movement. तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। The human body is so soft on the outside and hard on the inside. तो human body क्या है? बाहर से soft है, अंदर से hard है। When we touch our hands, we feel our soft skin but also something hard inside. तो जब हम अपनी स्किन को टच करते हैं तो हमें कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, पर हमें ये भी फील होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्ड चीज भी है। These are called bones. तो ये हार्ड चीज क्या कहलाती है? बोन। There is a flesh present between skin and bone. This is called muscle. और हमारी स्किन और बोन के बीच में जो फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट है हम उसको मसल्स बोलते हैं। We have different organ system in our body. तो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम अलग अलग है। The bones in our body form the skeletal system and the muscle form the muscular system. तो हमारी बॉडी की बोन्स बनाती है skeletal system और मसल्स बनाती है musculatory system. The bones in our body form the skeletal system and the muscles form the muscular system. We have different organ systems in our body. The bone in our body form the skeletal system and the muscle form the muscular system. तो हमारी बॉडी में ऑर्गन के सिस्टम अलग अलग हैं। जो बोन मिलकर सिस्टम बनाती है हम उसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं और जो मसल सिस्टम बनाती है हम उसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट इज द स्केलेटल सिस्टम। Let's first understand the definition of the skeletal system. सबसे पहले हम skeletal system की definition को समझते हैं। All the bones present in your body along with supporting structures like tendons, ligaments, cartilages and other connective tissue can be collectively called the skeletal system. अब हमारा skeletal system सिर्फ bone का ही नहीं होता है, हमारे skeletal system में होते हैं tendons, ligaments, cartilages और भी बाकी connective tissues. Fine. The framework of bones in our body is called the skeleton or skeletal system. तो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है बोन्स का वो कहलाता है skeleton या skeletal system. It supports the body, protects delicate organs like brain, heart and main sense organs. तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और अंदर के ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और बाकी सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। It gives the shape and strength. तो बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ देता है। The bone framework is formed in such a way that we are able to sit, stand, bend, walk, run and perform many functions with our hands and legs. तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क इस तरह से डिजाइंड है कि हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी रोज की एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपने हाथ पैरों को मूव कर सकते हैं। The human skeleton is made up of 206 bones. तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। Some bones are large while others are small. तो कुछ bones होती हैं जो बड़ी होती हैं और कुछ bones छोटी होती हैं। Bones are made of living cells which is why they grow as one gets older. तो हमारी bones living cells से मिलकर बनी होती है, इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो हमारी bones भी grow होती हैं। The bones are hard with holes and hollows in them for nerves and blood vessels. तो बोन्स हार्ड होती हैं और अंदर से होलो होती हैं यानी कि खाली होती हैं क्योंकि उनके अंदर ब्लड और ब्लड वेसल्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो। और लॉन्ग बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोथ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इनसाइड द बोन मैरो। और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं।
The red blood cells carry oxygen to every part and the body and white blood cell fight germs of diseases. तो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करता है सब बॉडी पार्ट्स तक और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के जर्म्स और डिजीज से फाइट करता है. Next is parts of the skeleton. The skeleton is made of many parts: the skull, backbone, rib cage, limbs and girdles. तब हम पढ़ते हैं skeleton किन किन चीजों से मिलकर बना है. तो सबसे पहला है skull. The skull forms the protective outer covering of the brain. तो skull हमारा बनाता है outer covering brain का. There are openings in the skull for eyes, ears and nose. तो हमारे skull में opening है हमारी nose के लिए, eyes के लिए और ears के लिए. The teeth are attached to the upper jaw and the lower jaw. और जो हमारे टीथ हैं वो अपर जॉ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में टीथ अटैच्ड हैं. The upper jaw is fixed to the skull while the lower jaw is attached to a joint and thus movable. तो हमारा जो ऊपर का जॉइंट है वो आप देख सकते हो स्कल से अटैच्ड है, पर नीचे वाला जॉइंट हमारा मूवेबल है, हम उसको मूव कर सकते हैं. The human skull is made of 22 bones. तो हमारा human skull 22 bones से मिलकर बना है. The 8 bones at the back protect the brain, while the 14 bones in the front form the facial structure protecting the eyes, ears, nose and mouth. तो पीछे का हिस्सा 8 बोन से मिलकर बना है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और आगे का हिस्सा हमारे सेंस ऑर्गन जैसे कि आईज, नोज, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है. Next is backbone. In the center of our back is a series of 33 small irregular bones called vertebrae. तो हमारे बैक के सेंटर में 33 बोन्स हैं जो कि अरेंज्ड है, हम उसको वर्टिब्रे बोलते हैं. The vertebrae collectively form the backbone और spine. तो सारे वर्टिब्रे मिलकर एक बैकबोन या स्पाइन बनाते हैं. These bones are linked together to form vertebral column. और ये बोन साथ मिलकर एक vertebral column बनाती हैं. The vertebral column protects the spinal cord which runs through it. और ये vertebral column एक spinal cord को protect करता है जो हमारी body के अंदर back से run हो रही है. Fine, this is the picture of spinal cord. Next is rib cage. The 12 pairs of ribs in our body form rib cage. It protects delicate organs like the lungs, hearts and kidneys. तो हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ बोन्स क्या बनाती हैं, रिब केज, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, और ये हमारे लंग्स, हार्ट और किडनीज को प्रोटेक्ट करती है. The ribs are attached to the backbone at the back and the breastbone in the front. तो हमारे रिब्स बैक से बैकबोन में अटैच होते हैं और फ्रंट से ब्रेस्टबोन में. The last two pairs of ribs are not attached to breastbone. They are called floating limbs. तो आप नेक्स्ट देख सकते हो जो हमारी लास्ट की बोन्स हैं ये ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज लिम्स. देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस में 2 पेयर होते हैं लिम्स के. द हैंड्स आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स. तो जो हमारे हाथ होते हैं वो होते हैं 4 लिम्स और जो हमारे लेग्स होते हैं वो होते हैं हिंड लिम्स. 2 large bones join together to form a hand. तो 2 large bone मिलकर एक hand form करती है. Similarly, 2 bones join to form a leg. ऐसी 2 bones मिलकर एक leg form करती हैं. Many small bones join together to make up the wrist, palm and fingers. बहुत सारी small bones मिलकर wrist, palm और fingers बनाती हैं. The bones of limbs are attached to the girdles. और हमारी जो bones हैं limb की वो girdle से attach होती है. The upper arm bone is attached to the shoulder girdle. जो ऊपर की bones हैं वो shoulder girdle से attach होती हैं. The thigh bone is attached to the hip girdle. जबकि thigh bone hip girdle से attach होती है. The longest bone in our body is the femur or thigh bone. हमारी body की सबसे लंबी bone है femur या thigh bone. Next is girdles. There are 2 pairs of girdles present in our body. The पेक्टोरल ग्रिडल एंड द पेल्विक ग्रिडल. तो हमारी बॉडी में 2 ग्रिडल होते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल. द पेक्टोरल ग्रिडल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द शोल्डर वेयर द 4 लिम्स आर अटैच्ड. तो जो ऊपर की ग्रिडल होती है पेक्टोरल ग्रिडल वो किसको अटैच करती है, शोल्डर्स को. द पेल्विक ग्रिडल फॉर्म्स द हिप वेयर द हिंड लिम्स बिगिन. तो पेल्विक ग्रिडल हिप से फॉर्म होती है जहां पर हिंड लिम्स शुरू होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है पेल्विक ग्रिडल और
पेक्टोरल ग्रिडल। फाइन। बोन्स आर मेनली मेड फ्रॉम द मिनरल्स कॉल्ड कैल्शियम। तो बोन्स हमारी एक मिनरल कैल्शियम से बनी होती है। इट इज important to eat calcium rich foods like milk and eggs to make the bone strong। इसलिए हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए जैसे कि मिल्क और एग। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। Our upper body has a proper shape due to bones connected together। तो हमारी ऊपर की बॉडी की एक प्रॉपर शेप है क्योंकि बोन्स आपस में कनेक्टेड है। If the bones were separate and unconnected, our body would have irregular shape। तो अगर हमारी बॉडी की बोन्स कनेक्ट नहीं होती तो हमारी बॉडी की शेप इरेगुलर होती। बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट पर्टिकुलर लोकेशंस को नोन एज जॉइंट्स। तो बोन हमारी एक पर्टिकुलर जगह पे ज्वाइन होती है जिसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। सम जॉइंट्स आर फिक्स्ड इन प्लेस एंड डू नॉट मूव। तो कुछ जॉइंट्स फिक्स होते हैं और मूव नहीं करते हैं। दीज आर नोन एज इमूवेबल जॉइंट्स। तो इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। द स्कल इज मेड अप ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स टू होल्ड द ब्रेन। तो हमारा स्कल इमूवेबल जॉइंट से बनता है ब्रेन को होल्ड करने के लिए। There are joints that help in movement like bending, walking, lifting, etc। तो हमारे जॉइंट हमें बेंडिंग, वॉकिंग और चीज़ों को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। These are known as movable joint। क्योंकि ये जॉइंट मूव कर सकते हैं इसलिए हम इनको मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। There are various kind of movable joints in our body: hinge, ball and socket, pivot and gliding joints। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी मूविंग जॉइंट्स होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वर्क्स लाइक अ हिंज इन अ डोर। तो हमारा हिंज जॉइंट ऐसे काम करता है जैसे कि डोर का हिंज काम करता है जो डोर को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। एट दिस जॉइंट बोन्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इस जॉइंट में बोन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जॉइंट एट द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर आर हिंज जॉइंट। तो एल्बो, नी, टो और फिंगर्स में जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। फाइन, आपको यहाँ एक हिंज जॉइंट दिखाया हुआ है। Next is ball and socket joint। In this type of joint, the ball-shaped end of one bone fits into the cup-shaped socket of the other bone। तो उसमें एक बॉल शेप्ड जॉइंट दूसरे बोन के कप शेप्ड जॉइंट में फिट हो जाता है। This allows movement in all direction। इससे मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो सकती है। The hip and shoulder joints are example of this type of joint। तो hip और shoulder इस तरह के joint के example हैं। This is why we can move our arms and legs in all direction। इसलिए हम अपने arms और legs को हर direction में move कर पाते हैं। Next is pivot joint। The joint between our skull and the backbone is a pivot joint। तो हमारे skull और backbone के बीच जो joint है वो होता है pivot joint। It allows our head to move left and right and also up and down। इससे हमारा जो head है वो left, right, up और down move कर सकता है। Next is gliding joint। This type of joint is found in the wrist and ankle। तो gliding joint हमें wrist और ankle में मिलता है। हमारी wrist में क्या है? ये gliding joint है। Vertebrae are also joined together by gliding joints। और vertebrae भी gliding joint से जुड़े होते हैं। One bone glides on another। तो एक बोन दूसरी बोन में glide हो जाती है। It allows only a little movement but in all direction। तो इनमें जो मूवमेंट होती है बहुत थोड़ी सी होती है पर सब डायरेक्शन में हो पाती है। नेक्स्ट इज इट अलाउज आवर बैक टू बैंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट ऑफ आवर बैकबोन। इससे हमारी जो बैक है वो बेंड हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है जहां पर भी ये जॉइंट है। फाइन। नेक्स्ट इज मसल्स। Our body is made up of muscles that help in performing certain actions। तो हमारी बॉडी मसल से मिलकर बनी है जो हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। All the muscles spread throughout our body make up the muscular system। तो हमारी बॉडी में सारी मसल स्प्रेड होकर एक मस्कुलर सिस्टम बनाती है। A muscle is a soft tissue made up of numerous fibers which make it flexible and elastic। तो हमारी मसल्स एक टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो कि इसको इलास्टिक बनाते हैं। There are over 600 muscles in our body। तो हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 600 मसल्स हैं। A few muscles help in the movement of the body while other muscles protect the organs। तो कुछ मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं और कुछ ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। How do muscles work? का मसल्स काम कैसे करती हैं? All muscles work by contracting and relaxing। तो सारी मसल्स वर्क करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके।
When a muscle contracts, it shortens and draws the bones closer. तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो छोटी हो जाती है और बोन्स को पास ले आती है. When it relaxes, it comes to its original shape. और जब ये रिलैक्स हो जाती है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है. मसल्स वर्क इन पेयर्स. तो मसल्स पेयर में काम करती है यानी कि जोड़ों में काम करती है. ईच मूवेबल जॉइंट हैज टू सेट ऑफ मसल्स. तो हर मूवेबल जॉइंट में दो सेट होते हैं मसल्स के. वन टू पुल द बोन्स अप एंड अदर्स टू पुल द बोन्स बैक. एक बोन्स को पुल करने के लिए और एक बोन्स को वापस पुश करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बेंड योर आर्म्स एट एल्बो, द बाइसेप मसल्स एट द टॉप ऑफ योर आर्म शॉर्टन. तो जब आप अपनी एल्बो को बेंड करते हो तो आपके ऊपर की जो मसल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं. ठीक है, मसल्स ऑफ बाइसेप, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. एट द सेम टाइम द ट्राइसेप मसल ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म स्ट्रेंथन. और जो आपके लोअर आर्म में ट्राइसेप मसल्स है वो क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है, उसको और स्ट्रेंथ मिल जाती है. एट द सेम टाइम द ट्राइसेप मसल्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म लेंथन. और जो आपकी ट्राइसेप मसल्स हैं जो कि आपकी लोअर आर्म पर है वो लेंथन हो जाती है यानी कि उसकी लेंथ बढ़ जाती है. When you make an arm straight, the bicep lengthen and tricep shorten. जब आप अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करते हो तो बाइसेप बड़ा हो जाता है और ट्राइसेप छोटा. Some muscles do not move bones. कुछ मसल्स बोन को मूव नहीं करते हैं. We use 14 muscles in our face just to smile. तो हम स्माइल करने के लिए 14 मसल्स का यूज करते हैं. We open and close our eyelids with the help of muscles. हम अपने eyelids को, अपनी आंखों को खोल पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं, वो भी सब मसल्स की वजह से. We can make many poses of the face with their help. तो हम अपने फेस में बहुत सारे पोज ले सकते हैं इनकी हेल्प से. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ मसल्स. मसल्स आर यूजुअली ऑफ 3 काइंड्स. तो मसल्स ज्यादातर 3 तरह की होती है. स्ट्रिप्ड और स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. तो स्केलेटल मसल्स, जिनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, वो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है. They are known as voluntary muscles as we have control over them. हम इन मसल्स को voluntary muscles बोलते हैं क्योंकि हम इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. We can move them at our will. तो हम इन मसल्स को तब मूव कर सकते हैं जब हमारी मर्जी हो. For example, muscles of fingers, arms and legs are voluntary muscles. तो हमारे fingers, arms और legs की muscles voluntary muscles है क्योंकि हम जब चाहें अपने hand को कैसे भी मूव कर सकते हैं. We use them to throw a ball, lift a book or walk up a hill. तो हम अपने मसल्स का यूज करते हैं एक बॉल को थ्रो करने के लिए, किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स हैंडल द वर्क ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट. तो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे सारे ऑर्गन्स का वर्क को मेंटेन करती हैं एक्सेप्ट हार्ट. We do not have direct control over their actions. और हमारा उनके एक्शंस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, हम उनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. We cannot move them at our will. और हम उनको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर. जैसे कि मूवमेंट ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलेंट्री थ्रू देयर स्ट्रक्चर इज लाइक वॉलेंट्री मसल्स. तो हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री भी बिहेव करती है और वॉलेंट्री भी. दे कीप ऑन वर्किंग इंडिपेंडेंटली नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ. तो वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और वो थ्रू आउट द लाइफ यानी पूरी जिंदगी काम ही करती रहती हैं, तभी हमारा हार्ट चलता है. फाइन. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यूज. द मसल्स एंड बोन्स इन आवर बॉडी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. तो हमारी बॉडी की मसल्स और बोन्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं यानी कि आपस में काम करती हैं, रिजल्टिंग इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी स्मूथली फंक्शन कर सके. However, this would be impossible without the connective tissue that join them. पर यह करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता अगर हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करने के लिए ना होता. Bones and muscles are connected to each other by connective tissue called tendons which help them in easy movement. तो हमारी bones और muscles जिस connective tissue से connect होती है वो कहलाता है tendons. Ligaments are tissue that are mostly present in joints and connect to bones. तो ligaments present होता है joints में जो कि connect करता है दो bones को. Next is fascia is another connective tissue that connects the muscle. तो fascia क्या करता है, muscles को connect करता है.
नेक्स्ट इज लेसन एट अ ग्लैंस। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं। द स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो स्केलेटन फॉर्म करता है। आर स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, गिव शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। तो हमारा स्केलेटन ऑर्गन हमारी बॉडी को शेप देता है और अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मूवेबल एंड इमूवेबल। तो जॉइंट दो तरह के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर, तो मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। फाइन। मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव। तो मसल्स हेल्प करती हैं बोन को मूव करने में। मसल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। तो मसल तीन तरह की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। फाइन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ब्रिंग अबाउट ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। तो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही बॉडी ऑर्गन्स में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। हाउ मैनी बोन्स मेक अप द स्कल? 21, 22 या 25। तो हमारी कितनी बोन्स मिलकर स्कल बनाती हैं? तो आंसर इज 22। The joint between the skull and first two vertebrae of the bone is called hinge joint, pivot joint or gliding joint. तो आंसर is pivot joint. Which of the following is an example of immovable joint? इसमें से कौन सा joint immovable है? Bones in the wrist, bones in the face या bones in the upper part of the skull. तो bones in the upper part of the skull. Which of the following movements cannot be done by the bones in the neck? Up and down, right to left या front to back? तो हमारा neck कौन सी movement नहीं कर सकता है? Front to back. Involuntary muscles are also called dash muscles. Rough, smooth या hard? तो answer is smooth. Muscles are attached to bones by ligaments, tendons या joint? तो answer is tendon. Next is fill in the blanks. The skeleton of an adult has dash bones. So answer is 206 bones. The backbone protects the spinal cord. The last two pairs of ribs are called floating ribs. The dash joint allow movement in all directions. The answer is ball and socket joint. The dash is the longest bone in the body. The answer is femur. Dash muscles are found in the heart. The answer is cardiac. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.